جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علم الصرف میں ہم نے پچھلی دفعہ فعل ماضی معروف کی گردان مکمل کی تھی۔ آج ہم فعل ماضی مجہول کی گردان کو مکمل کریں گے۔ تو اسی طریقے پر چلتے ہیں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بنائی تھی معروف کی گردان، اب ہم آج بناتے ہیں مجہول کی گردان۔ تو ہمارے پاس وہی اسی طریقے سے ہم ابھی لے لیں فی الحال کہ اوپر ہم لکھ رہے ہیں واحد، مثنی اور جمع، پھر مذکر، مؤنث غائب، پھر مذکر، مؤنث حاضر، اور پھر مذکر و مؤنث متکلم۔ ٹھیک ہے، یہ خاکہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اچھا، اب کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو جو ماضی مجہول ہے، یہاں دیکھیں آپ، یہ جو ماضی مجہول ہے ہمارے پاس، اس میں جو بنیادی وزن ہمارا دیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ آپ کو دیا ہوا ہے فعیلا۔ تو اس فعیلا سے ہم اب آگے گردان بنائیں گے، تو آئیے بناتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا جو صیغہ ہے وہ ہے فعیلا۔ اب بالکل اسی پیٹرن پہ جیسے ہم نے معروف کی گردان بنائی تھی، ہم کچھ چیزوں کو ایڈ کریں گے اور ہمارے مختلف صیغے بنتے جائیں گے۔ تو فعیلا کے بعد اس کا مثنیٰ بنانے کے لیے ہم ایک الف کو ایڈ کریں گے۔ جب ہم الف ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا فعیلا۔ پھر واو کو ایڈ کریں گے تو جمع کا صیغہ بن جائے گا فعیلو۔ پھر تا ساکن کو ایڈ کریں گے تو یہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ تا الف زبر تا کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا مثنیٰ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ اچھا، پھر چھٹے صیغے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم لام کلمے کو ساکن کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم لام کلمے کو اب ساکن کریں گے اور نون زبر لگائیں گے تو یہ جمع مؤنث غائب بن جائے گا۔ اور اگر تا زبر والا لگائیں گے تو واحد مذکر حاضر بن جائے گا۔ تما لگائیں گے تو یہ مثنیٰ کا صیغہ بن جائے گا۔ تم لگائیں گے تو یہ فعلتم ہو جائے گا، جمع مذکر حاضر۔ پھر مؤنث میں فعلتی، فعلتما ایسے رہے گا، اور یہاں آ جائے گا فعلتن۔ اور یہاں پر ہم متکلم میں لگائیں گے تا پیش فعلتو، اور نون الف زبر نا، فعلنا۔ تو یہ پیٹرن ہمارا بن جائے گا ماضی مجہول کی مثبت گردان بنانے کا، پازیٹیو گردان۔ اچھا، فعیلا میں اب کیا ہو جائے گا کہ کام کس پر ہو رہا ہے اس کا مفہوم بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور زمانہ بھی آ جائے گا، لیکن کام کرنے والا کون ہے یہ اس میں ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ مثلا اس میں اگر ہم بنائیں نصیرہ، تو نصرہ کا مطلب تھا اس نے مدد کی، لیکن نصیرہ اگر ہم بنا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی پر ایک مجہول گردان ہم بنا لیتے ہیں، اور چاہے وہ ہم نصیرہ کو لے لیں، یہی بنا لیتے ہیں، چلیں۔ تو پہلا صیغہ ہمارا بن جائے گا نصیرہ۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کی مدد کی گئی، جبکہ نصرہ کا مطلب تھا اس نے مدد کی۔ تو وہ جو فاعل تھا معروف گردان میں، اب وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا، یعنی اب وہ کام کرنے والا نہیں رہے گا بلکہ اس پر کام کا اثر ہوگا۔ تو نصیرہ، پھر اس کا دوسرا صیغہ کیسے بنے گا؟ الف لگا دیں گے آگے، نصیرہ، اس کا مطلب ہو جائے گا ان دونوں کی مدد کی گئی، ان دونوں کی مدد کی گئی۔ پھر نصیرو، کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب کی مدد کی گئی۔ پھر ہوگا نصیرت، کیا مطلب ہوگا؟ اس مؤنث کی مدد کی گئی۔ پھر نصیرتا، ان دونوں مؤنث کی مدد کی گئی۔ پھر یہاں پہ لام کلمے کو ساکن کریں گے، نصرنا، نصرنا ان سب مؤنث کی مدد کی گئی۔ پھر یہ ہو جائے گا نصرتا، پھر نصر تما، نصر تم، پھر نصر تی، یہ نصر تما ہی رہے گا۔ پھر یہ ہو جائے گا نصر تننا، اور پھر یہ متکلم میں آ جائے گا نصر تو اور نصر نا۔ تو نصر تو کا مطلب ہوگا میری مدد کی گئی، نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی، نصر تا تمہاری مدد کی گئی، نصر تی
तुम मोन्नस की मदद की गई, नुसिर तुम सबकी मदद की गई। तो इसमें आप एक काम करें कि जैसे ये गर्दान है रूजी का, इसकी बनाइए जरा अपने पास, लिखें इसको, कॉपी में लिखें, जब तक लिखेंगे नहीं ना तो ये काम चलेगा नहीं। रोजी का से बना लें या फुतिहा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कुरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से मशहूर है जुरीवा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और हुमीदा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक की गर्दान अभी आप बना लें तो आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह अच्छे से। तो क्या बना जी रुजिका से, रुजिका, हाँ ठीक है, रुजिकू, रुजिकत, रुजिकाता, रुजिकना, रुजिकता, रुजिकतुमा, रुजिकतुम, रुजिकती, रुजिकतुमा, रुजिकतुन्ना, रुजिकतू और रुजिकना। तो इसका मतलब होगा उसको रिस्क दिया गया या उसको अता किया गया, रुजिकतू मुझे अता किया गया। इस तरह से फुतिहा का मतलब होगा उसको खोला गया, उसमें जो भी चीज आप लेंगे। कोरिया का मतलब है उसको पढ़ा गया, और जुरीबा का मतलब है उसको मारा गया, हुमीदा का मतलब होगा उसकी तारीफ की गई। तो इसके आप सारे सीगे जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जरा किताब की तरफ आइए। तो यहाँ किताब में देखें आपको माजी मजहूल बनाने का पूरा तरीका बताया गया है। आपने करना क्या, हमने अभी तो वो वजन पढ़ा और उसी को लेकर हमने बनाया। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कैसे करना है आपने माजी मजहूल बनाने का तरीका। माजी मारूफ के सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, माजी मारूफ का हमारा सीगा क्या था, फ़ाअला, तो उसका जो पहला सीगा है उसके आखिरी हर्फ को उसकी हालत पर छोड़ दो, यानी वो जो लाम कलमा है, लाम पर जबर, वो जबर ही रहने दो, और आखिर के पास वाले यानी आखिर से जो पहले वाला हर्फ है उसको हमने क्या दे देनी है, जेर। अगर जेर नहीं है तो, अगर पहले से जेर है तो जेर ही रहने दिए, वरना उसको जेर दे दें। और बाकी जितने हरकत वाले हुरूफ हों उससे पीछे के, चाहे वो एक हो या दो हो या ज्यादा हो, उन सबको क्या दे देना है, पेश। तो ये हमारा बन जाएगा माजी मजहूल का सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। देखिए हमारे पास था फ़ाअला, फ़ाअला से वो ये कह रहे हैं कि लाम कलमे को तो आप ऐसे ही छोड़ दें, यानी लाम पे जबर वैसे ही छोड़ दें, और लाम से पहले वाले पर जेर दे दें, लाम से पहले वाले पर जेर दे दें। अब इससे पीछे जितने भी हैं हरकत वाले, जो साकिन है वो तो साकिन ही रहेगा, जो हरकत वाले हैं उनको हम दे देंगे पेश। तो ये बन जाएगा हमारा माजी मजहूल। इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं जरा मजीद फी के किसी फेल को लेकर। जैसे हमारे पास है अनजला, अनजला ये हमारा माजी मारूफ है, तो इससे हमने मजहूल बनाना है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अब हम हरकत बदलेंगे। क्या करेंगे, लाम पर तो जबर ही रहेगी, जा पर अब क्या आ जाएगी, जेर, जा पर आ जाएगी जेर, जो साकिन है वो साकिन ही रहेगा, और बाकी जो भी है उस पर पेश लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, उनजिला। तो अनजला का मतलब है उसने नाजिल किया, उनजिला का मतलब है उसको नाजिल किया गया, उसको नाजिल किया गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहां पर ले लें इम्तहाना, इम्तहाना, तो इसका मजहूल बनाना होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन हरकत हम अभी अपनी मर्जी के लगाएंगे। तो इसमें लाम कलमा है नून, तो नून पर जबर रहेगी, लेकिन हा पर अब क्या आ जाएगी, जेर, हा पर हम कर देंगे जेर। अब इससे पीछे वाले जितने भी हैं उनको हम पेश कर देंगे, लेकिन साकिन को साकिन ही रहने देंगे। तो ता पर पेश करेंगे, ये मीम साकिन ही साकिन रहेगा, और हमजा पर भी पेश आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, तोहिना, तोहिना। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास अगर है इसी से बाब इफ्तियाल से बनता है इंतखाबा, इंतखाबा। अब इसका मजहूल बनाए तो क्या बन जाएगा, हाँ ये हो जाएगा उन तू खी बा। तो लास्ट पार्ट जो है वो इला वाला रहेगा, पीछे सारे पेश जो है वो हम कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है इस तन सरा, मिसाल के तौर पर
इस्तनसारा, इससे मजहूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा उस तुन सेरा, उस तुन सेरा। तो कोई भी आपको सीगा दिया हो आप उससे मजहूल बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो जरा किताब में आइए, एक नजर देखें इसको दोबारा। तो ये हमने पढ़ लिया। तो माजी मजहूल का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब बन जाएगा। जैसे ज़राबा से क्या हो गया, ज़ुरिबा, समिआ से सुमिआ, अकरमा से उकरिमा, और इजतनबा से उजतुनिबा। अच्छा, फिर बाकी सीगे बनाने के लिए वही तरीका इख्तियार करो जो माजी मारूफ में बयान हुआ था। तो वही अलिफ लगाएंगे, दूसरा सीगा बन जाएगा, वाव लगाएंगे, तीसरा सीगा, ता साकिन, ता अलिफ जबर ता, और फिर लाम कलमे को साकिन करके नून पे जबर, फिर ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, और तू और ना। इस तरह से हम उसकी पूरी गर्दान बना लेंगे। और इसके साथ ही जो अगली चीज है वो है माजी जो मुस्बत था उसके शुरू में क्या लगा देंगे हम, माँ। तो माँ लगा देने से उसमें माजी मनफी हो जाएगा। यही चीज माजी मजहूल में भी आएगी, यानी माजी मजहूल मुस्बत भी होगा और माजी मजहूल मनफी भी बनेगा। मिसाल के तौर पर, यानी अगर हमारे पास जैसे है ज़ुरिबा, तो ज़ुरिबा का मतलब होगा उसको मारा गया, और माँ लगा दूं तो माँ ज़ुरिबा क्या मतलब होगा, उसको नहीं मारा गया। कुतिला, उसको कत्ल किया गया। माँ कुतिला, हाँ उसको कत्ल नहीं किया गया। अच्छा, ये अभी हम पहला सीगा देख रहे हैं, इसमें कोई और सीगा आप ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि रुज़िक तू, रुज़िक तू का मतलब होगा मुझे रिस्क दिया गया। माँ रुज़िक तू, मुझे रिस्क नहीं दिया गया। तो इस तरह से हुमिद तू, मेरी तारीफ की गई, माँ हुमिद तू, मेरी तारीफ नहीं की गई। ज़ुरिब तू, मुझे मारा गया, माँ ज़ुरिब तू, मुझे नहीं मारा गया। तो आप कोई भी सीगा लेके उससे पीछे माँ लगा देंगे तो आपके ये माजी मजहूल मनफी वाला बन जाएगा। तो अब ये चारों पैटर्न हमारे मुकम्मल हो गए। तो आइए जरा किताब में देखें, ये चारों की गर्दान आपको एक ही टेबल के अंदर दी गई है। ये जो फसल अव्वल है फेल माजी मारूफ की गर्दान, तो इसमें आप देखिए पहले जो है वो इस बात वाले दोनों बनाए गए हैं, माजी मारूफ और माजी मजहूल, और उसके बाद फेल माजी का मनफी, फेल माजी मारूफ का नफी वाला, और फिर फेल माजी मजहूल का नफी वाला। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने माँ लगाया, मनफी बनाने के लिए माँ लगाया। तो फ़ाअला से मजहूल बन गया फ़ोइला, और फ़ाअला से पहले माँ लगाया तो माँ फ़ाअला, और फ़ोइला से पहले माँ लगाया तो माँ फ़ोइला। तो इस तरह से ये चार गर्दानें आपकी एक साथ चल रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा टेबल देख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा, अब नीचे तरह एक ये जो माजी मजहूल को बनाने का तरीका है, इसको एक नज़म की सूरत में भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसको भी जरा देख लीजिए क्या कहते हैं वो, जो भी हमने पढ़ा है ऊपर नसर में, उसी को वो जरा नज़म की सूरत में बता रहे हैं। कहते हैं कि गौर करके मुझसे अब सुन लो जरा, माजी मजहूल का तुम कायदा। माजी मजहूल का कायदा क्या है कि हरफे आखिर माजी मारूफ को हाल पर उसके हमेशा छोड़ दो। यानी वो जो फ़ाअला में लाम कलमा है, उसकी लाम की जो जबर है वो जबर ही रहेगी। पहला आखिर से न हो मकसूर गर, जेर दे दो इसको वाजिब जानकर। यानी लाम से पहले वाला अगर उस पर पहले से जेर नहीं है तो उसको जेर दे दो, और ये लाजमी करना है, वाजिब जानकर, यानी इसको लाजमी करना है। बाकी जिस जिस हर्फ पर मारूफ के फतहा या कसरा हो दो जुम्मा उसे, यानी अब इसके अलावा जो भी पीछे है उस पर जबर है या जेर है तो उसको हम क्या कर देंगे, पेश कर देंगे। माजी मनफी बनाना हो अगर, माँ लगा दो उसके अव्वल बेखतर। तो माँ लगा देंगे तो वो हमारा माजी मनफी बन जाएगा। तो ये तो खैर नज़म की बात हो गई। अब इसमें हमें कुछ गर्दाने बनाने के लिए वो कह रहे हैं। कहते हैं कि अफाले जेल की चारों गर्दाने,
चारों कौन सी जो अभी ऊपर टेबल में गुजरी हैं? माजी मारूफ मुस्बत, माजी मारूफ मनफी, माजी मजहूल मुस्बत, माजी मजहूल मनफी। तो ये चारों गर्दानें बनानी है। तो एक हम बना लेते हैं, बाकी आप होमवर्क के तौर पर इसको ले लीजिएगा। तो कौन सी बनाए ये आप बता दें जी। कतबा बना लें, तो कतबा हम बना लेते हैं, फिर बाकी आपने बनाने। अच्छा, अब होगा क्या, हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, सीखे हमारे पास पूरे। तो हम यहाँ लिखेंगे माजी मारूफ मुस्बत, फिर लिखेंगे माजी मजहूल मुस्बत, फिर लिखेंगे माजी मजहूल मारूफ मनफी, और आखिर में होगा माजी मजहूल मनफी। तो इस तरतीब से हम ये करेंगे। यहाँ पर हम अब रोज में क्या ले लेंगे, अपने सीगे ले लेंगे। तो पहला सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब, फिर तस्निया मुजक्कर गायब, फिर जमा मुजक्कर गायब, फिर वाहिद मोन्नस गायब, फिर तस्निया मोन्नस गायब, फिर जमा मोन्नस गायब, फिर हम ले लेंगे वाहिद मुजक्कर हाजिर, फिर ले लेंगे तस्निया मुजक्कर हाजिर, फिर ले लेंगे जमा मुजक्कर हाजिर। तो ये यहाँ पे बनाते हैं, बाकी अगले सफ़े पे बना लेंगे। तो आइए यहाँ पे बनाते हैं, हम कतबा से बना रहे हैं। तो पहला जो सीगा है वो बन जाएगा हमारा कतबा। अच्छा, अब आप चाहें तो ये कॉलम, एक ही कॉलम को पूरा कर लें फिर दूसरे पर आए, या रो वाइज भी आप चल सकते हैं, कि यानी इसी के पहले सारे सीगे बना लें। तो कतबा से मजहूल हो जाएगा कुतिबा, और माजी मारूफ का मनफी हो जाएगा मा कतबा, और ये हो जाएगा मा कुतिबा। फिर दूसरा सीगा हमारा बनेगा कता बा, तो ये हो जाएगा कुती बा। ये हो जाएगा मा कुतिबा, सॉरी मा कतबा, और ये हो जाएगा मा कुतिबा। फिर जमा में आ जाइए, तो ये हो जाएगा कतबू, ये हो जाएगा कुतिबू, फिर मा कतबू और मा कुतिबू। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा अब कतबत, ये हो जाएगा कुतिबत, मा कतबत और मा कुतिबत, फिर कतबता, फिर कुतिबता, फिर मा कतबता और मा कुतिबता, फिर कतबना, अब ये आ जाएगा कतबना और कुतिबना, मा कतबना और मा कुतिबना, फिर कतबता, फिर कुतिबता, मा कतबता और मा कुतिबता, फिर कतबतुमा, फिर कुतिबतुमा, मा, हाँ मा कतबतुमा और मा कुतिबतुमा, फिर जमा में हो जाएगा कतबतुम और कुतिबतुम, मा कतबतुम और मा कुतिबतुम,
ٹھیک ہے, یہ ہمارے کتنے سیگے بن گئے؟ 9. ٹھیک ہے, ابھی کتنے باقی ہیں؟ 5. تو وہ اگلے صفحے پہ ہم بناتے ہیں. تو یہاں پھر وہی ماضی معروف, اور اب ہمارا جو سیغہ آئے گا وہ آئے گا واحد مؤنث حاضر, پھر تثنیہ مؤنث حاضر, پھر جمع مؤنث حاضر, پھر آئے گا واحد متکلم, اور پھر آئے گا جمع متکلم. تو ہم بنا رہے تھے کتبہ سے, تو یہ آ جائے گا کتبتی, یہ ہو جائے گا کتبتی, پھر ما کتبتی اور ما کتبتی, پھر تسنیہ میں آ جائے گا کتبتما, یہ ہو جائے گا کتبتما, پھر ما کتبتما اور ما کتبتما, اور یہ ہو جائے گا کتبتنا, کتبتنا کتبتنا, پھر کیا ہو جائے گا؟ ما کتبتنا اور ما کتبتنا. واحد متکلم ہو جائے گا کتبتو, کتبتو, ما کتبتو اور ما کتبتو. آخری ہمارے پاس کتبنا, اور یہ ہو جائے گا کتبنا, ما کتبنا اور ما کتبنا. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا خاصا ایک لمبا کام ہے, لیکن یہ ایک دفعہ آپ کسی بھی فیل کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ یہ چاروں گردانیں آپ کو بڑی پکی یاد ہو جائیں گی. تو ذرا کتاب کی طرف آ جائیں. تو کتاب میں آپ کو ایک تو دیا گیا کتبہ, یہ ہم نے بنا لیا. تو منع اجتنبا یا علمہ, اس میں سے آپ کسی کو لے کر ترجمہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم آپ آج کے سبق کو یہیں رکھتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو باقی کی مشق ہے اس سے پھر ہم آغاز کریں گے اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے, تو آپ سے پھر اگلی کلاس میں علم الصرف کے حوالے سے ملاقات ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.